In previous chapters, we have seen magnetism due to current. Here is the reverse of that. Current due to magnetism. All right. Induction of current, electricity, in other words, with the help of magnetism. So this reverse process was very difficult to detect. In fact, many scientists surrendered. Later on, Faraday could do that. You know, we can produce the magnetism with the help of magnetism. So in this, he did so many experiments and later on came up with the laws. Changing flux is responsible for the production of electromagnetic induction. तो सबसे पहले flux, similar concept of flux is similar to the electrical flux and magnetic flux का same concept है. How do we define the electrical flux? It is the number of field lines crossing the surface perpendicularly and given by dot product of field and area vector. Similarly, here also, it is the dot product of magnetic field and area vector. Suppose we take the surface, small area of the surface, dA, area vector will be perpendicular. Area vector perpendicular होता है उसमें. Area vector define कर चुके हैं already हम लोग. So it is perpendicular vector to the area having same magnitude. And field, suppose it is at some angle theta. Field lines ऐसे जा रही हैं, completely surrounding the. So many field lines will be there. Just we are indicating one field line for sake of simplicity. ठीक है. So for a small area, flux will be B dot dA. dA is the small area that green से जो दिख रहा है. Dot product means cos theta है ना. For complete surface, we can integrate here. इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा. अगर b वेरिएबल है तभी इंटीग्रेट करना पड़ता है ना. b जो है वेरिएबल है इन टर्म्स ऑफ रेडियस गिवन और इन टर्म्स ऑफ एरिया गिवन है ना. इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगा के. ऑलराइट, अदरवाइज यू डोंट हैव टू डू इंटीग्रेट. अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट विल सफिशिएंट. दिस फार्मूला इज सफिशिएंट. ओके, यूनिफॉर्म फील्ड का नीचे मैंने लिखा है, देखो फिर से b इंटू एरिया टोटल ले सकते हैं अभी यूनिफॉर्म फील्ड में. तो बी ए कॉस थीटा ए द एरिया ऑफ कंप्लीट सरफेस. नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स हैज इंडिपेंडेंट यूनिट. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी ऑफ कोर्स. डॉट प्रोडक्ट है एंड इसकी यूनिट क्या है? वेबर, साइंटिस्ट के नाम से फिर से. एंड दूसरी यूनिट क्या हो सकती? टेस्ला मीटर स्क्वायर. तो अदर यूनिट इज टेस्ला मीटर स्क्वायर which is equal to 1 Weber. 1 Tesla, 1 Weber will be, both are SI unit. Both are SI unit. 1 Weber will be 1 Tesla meter square. Both are equivalent. So here you can see magnetic field as the independent, magnetic flux as the independent unit. इलेक्ट्रिकल फ्लक्स में नहीं था, उसमें फील्ड का यूनिट अलग से लिखना था और एरिया का अलग से. बट इट हैज वेबर. क्लियर? अदरवाइज सिमिलर है पूरा. एंड फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है? जब फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो. इन दैट केस एंगल विल बी 0. यहाँ पे देखो थीटा इज 0, फाई इज इक्वल टू BA maximum, and when theta is 90 degree पे क्या होगा? सरफेस ऐसे हो जाएगी, फील्ड परपेंडिकुलर है और सरफेस उसके पैरेलल हो गई तो एरिया वेक्टर जो है 90 डिग्री एंगल बनाएगा. इन केस ऑफ 90 डिग्री बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड व्हाट इज कॉल्ड फील्ड, फ्लक्स विल बी मिनिमम. नन ऑफ द फील्ड लाइंस विल बी, कुछ फील्ड लाइंस पियर्स होकर जानी चाहिए सरफेस से जो है. They should pierce and go. If that is not happening, to zero flux होगा. Flux is the property of surface. Even if field is there, but flux can be 0 if you have the surface in this position.
इसको हमने जैसा कि पहले बताया था, हम इस सिचुएशन को हम ऐसे एक वेसल से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। रेन वाटर, सपोज रेन इज हैपनिंग परपेंडिकुलर, तो मैक्सिमम पानी जाएगा इसमें। और इसको कैसे कर सकते हैं, इस वेसल को टर्न कर दिया हमने, नो वाटर विल एंटर इनटू द वेसल, क्योंकि एरिया वेक्टर इधर आ रहा है और रेन मींस ओपनिंग इधर आ रही है उसकी, और रेन इज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इट इज सिमिलर टू द container kept horizontally in the rain falling vertically, तो none of the water is entering, है ना। तो that's how we can relate both. Clear? फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिकॉज फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फ्लक्स से रिलेट किया। फ्लक्स अगर होगा, चेंजिंग फ्लक्स होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, ठीक है। तो एनीथिंग यू वांट टू आस्क, इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। एक वेरिएबल फील्ड का मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, और दूसरा डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट का दे रहा हूँ। टू क्वेश्चन विल डू। एनी डिफिकल्टी इन दिस? थीटा 0 पे देखो क्या हो रहा है, सरफेस जो है फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है इनफैक्ट, है ना। बट एंगल हम किससे लेते हैं, एरिया वेक्टर से लेते हैं, इसलिए थीटा 0 आ रहा है। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो फील्ड जब परपेंडिकुलर होती है तो ज्यादा फील्ड लाइंस उससे क्रॉस होके जाती है, क्रॉस होके जाना चाहिए ना। एंगल पे जब है तो इसका जो कंपोनेंट है ये क्या होगा, ध्यान से अगर देखो, बी कॉस थीटा विल बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फील्ड। कितना फील्ड की डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट, आई मीन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में फील्ड का कितना कंपोनेंट आ रहा है, दैट मैटर। इस केस में पूरा आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है ना। फील्ड इधर है, इसका कंपोनेंट, फील्ड का कंपोनेंट इधर 0 हो जाएगा। दैट परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैटर्स, इफ इट इज एट ऑल इट इज देयर, फ्लक्स विल बी देयर। ठीक है यहाँ तक? तो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। इस चैप्टर का यूज मैंने ऑलरेडी बताया आपको, जनरेटर जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करते हैं। जितनी भी पावर सप्लाई आ रही है घर में, है ना, ये सब इसी फिनोमिना से आ रही, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वट एवर इलेक्ट्रिसिटी इज कॉमर्शियली प्रोड्यूस, जितने भी पावर स्टेशन है वहां पे सब जगह यही इन्वॉल्व। फ्लक्स चेंजिंग, उससे फील्ड प्रोड्यूस, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती। दैट्स वाज द लॉज ऑफ फैराडेज। आगे हम देखने वाले, फिलहाल ये देखिए, एरिया वेक्टर इज गिवन और मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन। फाइंड आउट द मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी क्विकली। क्विक आंसर कितना आ रहा है, बोले। Are Sir, 17. Yeah. Okay. 17 is the first answer coming. What about others? आ रहा है आप लोग आंसर, अदर्स? सीक्वेंस ठीक कर लो पहले। आई के कोएफिशिएंट आई के साथ ही मल्टीप्लाई होंगे, है ना। सीक्वेंस चेंज करनी पड़ेगी। बी, ए डॉट बी और बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट में हम इंटरचेंज कर सकते हैं ना, कर सकते हैं यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। बी डॉट ए या ए डॉट बी, बी डॉट ए ही पढ़ा हम लोगों ने, नो प्रॉब्लम। बी लिख दिया, बी की सीक्वेंस चेंज कर दिया। 3i पहले होगा, फिर जे होगा, फिर के होगा ना। इसकी सीक्वेंस बराबर है, तो डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाते हैं। 17 वेबर। वेबर अगर याद नहीं आ रहा है तो कौन सा यूनिट लिख सकते हैं, डेराइव्ड यूनिट भी लिख सकते हैं, टेस्ला मीटर स्क्वायर। गॉट इट? नो प्रॉब्लम। तो दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन बोर्ड्स एग्जामिनेशन, और ये वाला भी बोर्ड में आ सकता है, या फिर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ये देखो एक इनफाइनाइट वायर है carrying current I, and here is the loop, small loop is there. Not only small, it is just significant है, इसका size वगैरह दिया हुआ है, B उसकी width है, length L है, kept at distance A from the near side is at distance A, ठीक है? तो what you have to find out flux through the surface, flux surface जो loop है उससे इसकी जो field होगी कितना flux होगा? तो find the flux through the rectangular plate if infinite wire and plates are in same plane and other things are shown in the diagram. Current दिख रहा है और distances वगैरह दिख रही हैं, बोलिए कितना फ्लक्स होगा? हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, बोलिए क्या करना पड़ेगा? इसका एरिया दिया है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, है ना? इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? I upon 2 pi है। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो ये फार्मूला लगेगा। तो हाउ टू गेट द फाइनल आंसर, बोलिए क्या कुछ क्लू मिल रहा है? सर फील्ड को एरिया ऑफ प्लेट से मल्टीप्लाई करो। तो फील्ड कौन सी लेंगे? तो फील्ड इज वेरिएबल नाउ। फील्ड यहाँ पर कौन क्या फील्ड लेंगे? आर क्या लेंगे बताइए? आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फील्ड। कौन सा डिस्टेंस लेंगे? ये वाला, ये बीच वाला, या ये वाला, या कुछ और? बिकॉज फील्ड इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। आर इज द डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस पे फील्ड अलग आ रही। यहाँ पर आर विल बी इक्वल टू ए, यहाँ पर इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा, ये डिस्टेंस ए प्लस बी। आर क्या लेना पड़ेगा बोलो? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? कि एनीबडी कैन, बोलिए। Just you tell me how to approach this question. I'm not asking you the answer. Answer निकाल लेना घर में. If you know the correct method, you can just do it at home, no problem. But correct method नहीं पता है तो you will be just landing up with the wrong result. मुझे method बता दीजिए कैसे करना है, that's all. Then you can do it at home. Quickly, इतनी बार हम लोगों ने किए हैं ये situation. You should be at least able to reply promptly, quickly. Yes sir, ऐसे करेंगे. This much time you should not take. सर बोलो वो anybody? पैरेलल वायर्स लगा सकते क्या कौन सा लॉ? फील्ड ड्यू टू पैरेलल वायर्स जो इस हाँ वो वायर तो से लगानी ही पड़ेगी ना वो। अच्छा पैरेलल वायर वाली नहीं, उससे तो फोर्स मिलता है, उससे तो फोर्स मिलता है, दैट कैन नॉट बी यूज्ड। पैरेलल वायर्स का तो फोर्स का कॉन्सेप्ट है, फोर्स नहीं निकालना ना, फ्लक्स निकालना है, बी डॉट डी है ना। एनीबॉडी एल्स? सर डिस्टेंस को प्लेट के सेंटर तक से लेते हैं। नो, ये लेमेंस मेथड हो गए, उससे कभी राइट आएगा कभी रॉन्ग आएगा, बट दैट इज नॉट द करेक्ट मेथड। एनीबॉडी एल्स? उससे हम बोल नहीं सकते वो कब होता है। अच्छा सेंटर से जब डिस्टेंस लेते हैं, जब कुछ लीनियर रिलेशन है, किसी डिस्टेंस के साथ लीनियर रिलेशन है तब राइट आता वो। अभी डिस्टेंस के साथ तो रेसिप्रोकल रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, तो देयर आर चांसेस दैट यू विल बी लैंडिंग अप विद द रॉन्ग आंसर। लीनियर रिलेशन के साथ एवरेज वैल्यू आ जाती है। ऑलराइट, नो दैट्स आल्सो रॉन्ग, दैट विल गिव यू रॉन्ग। एनीबॉडी एल्स क्विकली? वी हैव डेल्ट सो मेनी टाइम्स, ऐसी सिचुएशन मैंने आपको दी है। इफ यू थोड़ा सा ध्यान करो तो यू जस्ट विल गेट द राइट अप्रोच। एनीबॉडी एल्स क्विकली बताओ, इतना टाइम मत लो। नोबडी?
अरे देखो ये वेरिएबल नेचर है, फील्ड यहाँ पर कम है, यहाँ पर मोर है ना, यहाँ पर लिस्ट है। वेरिएबल नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के लिए कैसे अप्रोच करते, हाउ डू वी अप्रोच, बोलिए। वेरिएबल नेचर ऑफ क्या करना पड़ता है उसके लिए, बोलो। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हमें टोटल एरिया है ना, टोटल एरिया निकालना है, टोटल एरिया के साथ फ्लक्स निकालना है, तो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए क्या करना पड़ता है, बोलो। एक एलिमेंट्री एरिया लेना पड़ेगा हमें, छोटा सा नैरो, ठीक है। तो उसकी डिस्टेंस यहाँ से ले लो आप, कितनी ले रहे हैं, आर ले लेते हैं ना, बस उसकी फील्ड का अभी एरिया जो है, ये एरिया आप निकाल सकते हैं। ये एरिया कितना होगा, इसकी थिकनेस कितनी लेंगे, डी आर। अगर हमने यहाँ पर आर लिया है तो डी आर ले लो। इफ समबडी में टेक एक्स हियर, यहाँ पे डी एक्स लेना पड़ेगा। अल्टीमेटली तो हम लिमिट लगाएंगे, दिस एलिमेंट्री स्ट्रिप कैन बी एज क्लोज एज ए फ्रॉम द infinite wire and farthest distance will be a plus b, लिमिट a plus a से लेकर a plus b हो जाएगी। ऑलराइट, तो दैट्स हाउ इट गोज। तो अभी हो जाएगा ये कंप्लीट करके, because Yes. this you cannot escape from this. This is the question of our textbook, लास्ट क्वेश्चंस में ये वन ऑफ देम है, वन पार्ट ओनली। अभी उसके आगे भी करना था, तो ये एक पार्ट है उसका, फ्लक्स निकालना, ठीक है। तो वी हैव टू लर्न दिस, डू इट एंड सॉल्व करके भेजो उसको, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो ये होमवर्क प्रॉब्लम हो गई आपकी। Now, Faraday did so many experiments to give his well-known laws, two laws of electromagnetic induction. उसने मैग्नेट को मूव, यहाँ पर कॉइल ले लिया, नीचे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, मैग्नेट को मूव किया नियर बाय आर अवे, देन ही टुक टू कॉइल्स, एक में बैटरी लगाई और जैसे ही स्विच ऑन किया तो ही फाउंड डिफ्लेक्शन हियर, स्विच ऑफ करते समय भी डिफ्लेक्शन मिला। इसमें जब उसने स्टैटिक रखा तो नो डिफ्लेक्शन वाज देयर इन गैल्वेनोमीटर, व्हेन इट मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल देयर वाज डिफ्लेक्शन, व्हेन इट मूव्स अवे फ्रॉम द कॉइल देन आल्सो देयर वाज अ डिफ्लेक्शन। So like this he came up, he did the experiment, many experiments, and came up with the two laws. Let's see what are those. तो ये experiment है, तो with this experiment he came up with these two laws, ठीक है। Okay, before that let me show you one more point. डे टू डे लाइफ में ये दिस, यू नो, एनीबॉडी नोज व्हाट इज दिस, किसी ने ये देखा है क्या है ये डायग्राम जो है, दिस इज कॉल्ड प्लग और स्पार्क प्लग, फिटेड इन ऑल द पेट्रोल इंजन, वेदर टू व्हीलर से लेकर कार, है ना, तो पेट्रोल इंजन में रहता है। तो दिस यू नो, ये उसका इलेक्ट्रोड से, ये अर्थ इलेक्ट्रोड है और ये वाला सेंट्रल इलेक्ट्रोड है। इस इलेक्ट्रोड में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट इज सप्लाइड, है ना। 10,000 वोल्ट कहाँ से आएगा ऑटोमोबाइल में, टू व्हीलर में, फ्रॉम वेयर वी गेट, बैटरी तो 12 वोल्ट की है, तो इट इज इंस्टेंटेनियसली प्रोड्यूस्ड बाय दीज लॉज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, फैराडेज लॉज एंड लेंज लॉ एंड योर फिनोमेना कॉल्ड दिस इंडक्टेंस, है ना। तो इन सब से ये इस चैप्टर में देखो, वी आर गोइंग टू सी डे टू डे लाइफ में, दिस इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल्स प्रोड्यूसिंग द स्पार्क इन पेट्रोल इंजन्स। जब पेट्रोल उसमें जाता है गाड़ी में, पेट्रोल एंड एयर मिक्सचर, व्हेन इट इज कॉम्प्रेस्ड, है ना, उस समय स्पार्क होता है। ये स्पार्क से यहाँ पे पेट्रोल रहेगा, इधर पेट्रोल एंड एयर, इट विल गेट इग्नाइटेड, it will produce the high pressure that will push the piston outward,
and hence torque will be created that will roll our wheels. Wheel will push the ground. Wheel will push the rolling wheel push the road, and road will push the wheels forward. That's how the power is generated and vehicle moves on the ground. Okay. So this producing the high voltage, very high voltage in the even in the two wheelers also, not only in cars. अपनी एक्टिवा जो है, एक्टिवा गाड़ी है, बाइक है, सभी में hundreds many thousand volts are produced instantaneously. इसलिए उसमें जो लीड रहती है ना वायर, you see wire is very thick. अपने domestic supply में 220 volt है, thin wires are used, but here many hundreds volts है ना, तो थिक वायर इज यूज्ड. उसमें प्लग के ऊपर स्पार्क प्लग रहता है, छोटे से रहते हैं ये प्लग. जब खराब हो जाते हैं वो टेक्नीशियन चेंज कर देता है. अभी तो आजकल दे आर हाईली रिलायबल, 50,000 किलोमीटर तक चल जाता है ये प्लग. वैसे तो इसकी लाइफ कंपनी वाले बोलते होंगे 20,000 किलोमीटर के बाद चेंज करो, बट इट इज रनिंग मेनी थाउजेंड, 20,000 30,000 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद, 50,000 चलने के बाद हो सकता है चेंज करना पड़े. ये आपको टेक्नीशियन विल सर्विसिंग में जब गाड़ी जाती है ना तो वो चेंज कर देते हैं, फिर इसको पूछ के आपसे बता के. चलो, Faraday's laws of electromagnetic induction, laws of EMI. Induction means EMI यहाँ पर, laws of EMI, electromagnetic induction. ठीक है, क्योंकि Faraday's laws केमिस्ट्री में भी है, आई थिंक electrolysis laws, but here we are dealing with the electromagnetic induction. तो he gave two laws है ना. फर्स्ट लॉ क्या बोला उसने कि whenever there is change of magnetic flux linked to any conductor, अगर किसी कंडक्टर के आसपास, जो ऊपर एक्सपेरिमेंट हमने देखे ना, तो उसमें क्या किया, उसने मैग्नेट को मूव किया आसपास या कॉइल को स्विच ऑफ किया, स्विच ऑन किया, तो उससे क्या हुआ, चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ. तो चेंज ऑफ फ्लक्स अगर किसी कंडक्टर के सराउंडिंग में होते हैं तो देयर इज द इंड्यूस ईएमएफ. ईएमएफ यू नो, ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ओनली, ऑलरेडी वी हैव सीन इन करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो व्हेनेवर if there is change of magnetic flux linked to conductor, there is induced EMF in the conductor. ठीक है, तो first law tells about the induced EMF. What about second law? Second law जो है, it will tell you how much. First law will tell you there will be induced EMF अगर changing flux है कंडक्टर में या किसी सर्किट में या किसी लूप में. Second law will tell you how much. तो कितना प्रोड्यूस होगा, वो रेट ऑफ चेंज पे, कितना फास्ट आप फ्लक्स चेंज कर रहे हैं. इट इज नॉट द फील्ड, हाउ स्ट्रॉन्ग द फील्ड इज, दैट इज नॉट द क्राइटेरिया. हाउ फास्ट यू चेंज द फील्ड, इवन इफ इट इज वेरी स्मॉल, so you can produce a large magnetic, large induced EMF. So that's what is done in automobile. It is changing is done very fast. So with the small field, large induced EMF can be produced. With the small, small change of flux, I mean small field. Field इतनी strong नहीं है, फिर भी अगर उसको fast change करें तो that counts. देखो, तो second law जो है, let me just increase. हाँ, देखो, second law tells about how much. तो induced EMF in the conductor is equal to the time rate of change of flux, time rate of change of magnetic flux through the circuit. तो induced EMF का सिंबल E रहेगा, स्मॉल e, और दिस वन, बोथ सिंबल्स आर यूज, दोनों सिंबल्स यूज कर सकते हैं. हमने अर्लियर ये वाला यूज किया था, कैपिटल E वाला. तो इट्स अप टू यू. तो रेट ऑफ चेंज E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. चेंज ऑफ फ्लक्स होना चाहिए और कितना फास्ट हो रहा है. चेंज ऑफ फ्लक्स तो फर्स्ट में उसने बता ही दिया, बट व्हाट इज द रेट. फास्टर रेट मींस more flux, more induced EMF, more induced EMF. ठीक है, तो क्लियर बोथ लॉस. यूनिट क्या होगी इसकी, वोल्ट. EMF है, पोटेंशियल डिफरेंस है,
तो वोल्ट होगी यूनिट, वोल्ट विल बी द यूनिट, एंड सपोज n नंबर ऑफ टर्न्स है किसी लूप में, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे. ऑफ कोर्स दिस विल बी फॉर सिंगल टर्न, तो n नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है किसी लूप में, दैट्स व्हाट ही डिड. फैराडे ने यही किया, बहुत सारे टर्न्स ले लिए थे, एंड दैट प्रोड्यूस द इंड्यूस ईएमएफ. दैट वाज डिटेक्टेड, इन फैक्ट प्रोड्यूस तो हो रहा था, but it was such a small value, no instrument was able to detect, no scientist could detect that, but he got the clue कि number of turns अगर बढ़ा दें तो we can detect it. That's what he did. Number of turns काफी लिए, thousands of turns, many thousands of turns. ठीक है, तो number of turns से multiply करना पड़ेगा. Clear? तो could you get this? पहले हमने flux का concept सीख लिया, because flux is responsible, not field is not responsible. Field से flux बनेगा, but it should be changing, मतलब flux should be linked to the loop, and then it should be changing. Two conditions, एक तो flux होना चाहिए, फिर changing भी होना चाहिए, then only there will be induced EMF, which is d phi by dt, rate of change of flux. All right. तो इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं. डिफरेंशिएशन देखो, यहाँ पर डिफरेंशिएशन आएगा, रेट ऑफ चेंज किससे डील किया जाता है? डिफरेंशिएशन से. और टोटल है ना, प्रोडक्ट जो है किसी दो क्वांटिटी का, वो इंटीग्रेशन से. जैसे हमने ऊपर सीखा था, प्रोडक्ट है वो बी डॉट डी ए, तो इंटीग्रेशन से डील किया जाता है. एंड रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएशन से. ठीक है, तो जैसे अगर करंट करना है तो इफ आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द क्लोज लूप, अगर क्लोज लूप होगा तो करंट भी फ्लो होगा. करंट फ्लो होगा तो ओम्स लॉ से निकाल लेंगे, I इज इक्वल टू V बाय R. V हियर इज इंड्यूस ईएमएफ, है ना. तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं अभी. नोटेड? ओके, ये नोट कर लिया आप लोगों ने. एक मिनट. तो दिस वाज द फैराडेज लॉ, नोट कर लो. कैन यू सी? ऑलराइट, तो क्वेश्चंस किए हैं इसके अभी. देखिए, ये क्वेश्चन करके बताइए क्विकली. Flux is given. Flux is related with the time with this function. Find E at t is equal to 2 and current in the loop if resistance is 2 ohm, t is the time here. Quick answer. सर E इक्वल टू 5 वोल्ट. E is equal to 5. इसमें देखो यहाँ पे माइनस था क्या A ऊपर? is equal to -5 volt. हाँ, माइनस का भी हमने माइनस का हमने अभी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया आपको. माइनस साइन का एक्सप्लेनेशन है, लेंजेस लॉ बोलते हैं उसको. इट इज कमिंग अप नाउ. तो माइनस है तो माइनस लिखना पड़ता है इसमें. माइनस क्या होता है?
वो लेंज लॉ से रिलेटेड आई विल टेल यू। तो माइनस में लिखना है, पहले ऑप्शन देख लो, इफ माइनस प्लस बोथ आर देयर तो माइनस सेलेक्ट करना है, इफ ऑल आर मैग्नीट्यूड देन प्लस सेलेक्ट करना है। कितने आ रहा है? -5। और जब Yes, sir, करंट minus. लिखेंगे तो उसको करंट लिखेंगे तो मॉड लिख देंगे, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। तो डिफरेंशिएट कर दिया हमने, तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2 का, टी स्क्वायर का, ओके माइनस बाहर लगा लो, टी स्क्वायर का 2t आ गया, टी का 1 और 1 का 0, तो वो छोड़ दिया ना। तो ये अभी फंक्शन आ गया इंड्यूस ईएमएफ का। तो t इज इक्वल टू 2 पर पुट कर दो, 2 पुट कर दिया तो -5 वोल्ट। करंट निकलना है तब मॉड लेना है ना, तब मॉड लेना है 2.5 एम्पियर। तो माइनस का अपना सिग्निफिकेंस है, दैट इंडिकेट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ। माइनस साइन का सिग्निफिकेंस आगे देखते हैं, वहां पे नहीं लिख रहे हैं बिकॉज रिपीट हो जाएगा बार बार सेम थिंग। ठीक है, गॉट इट। तो दिस क्वेश्चन वाज देयर इन सम जेई के पेपर में था, तो दोनों ऑप्शन दिए थे, -5 वोल्ट वाज आल्सो देयर, +5 वोल्ट, देन यू हैव टू सेलेक्ट माइनस। if +5 volt is given and none of these में कुछ, none of these नहीं है, then you can go for magnitude. All right, clear to everyone? Are you there? Yes, sir. Okay. तो देखो एवरेज EMF ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू at t is equal to 2 seconds or t is equal to 3 seconds, है ना। तो these are instantaneous values. When time interval is significant, then things becomes average value. तो average value में क्या लिखेंगे? डेल्टा। इंस्टेंटेनियस में रेट ऑफ चेंज में डी लिखते हैं ना, d/dt। एवरेज में डी बिकम्स डेल्टा, है ना। तो डेल्टा हो जाएगा यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, है ना। दिस डेल्टा इज फॉर चेंज, है ना, डेल्टा वेरिएंट नहीं है ये। ऑलराइट, दिस इज सिग्निफिकेंट टाइम इंटरवल, डेल्टा मींस, डेल्टा टी मींस टाइम इंटरवल, है ना, t2 - t1, है ना। इसको t2 - t1 लिख सकते हैं, t2 - ठीक है। Unit remains same and then we'll get the average current. Once we are finding the average EMF, then we'll get the average current. All right. Okay. तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो यही, जस्ट सी व्हाट इज दिस क्वेश्चन। ठीक है, एवरेज में देयर विल बी सिग्निफिकेंट टाइम इंटरवल एंड कमिंग अप वी गोइंग टू सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंड्यूस EMF and induced current if copper loop is replaced by the identical silver loop and rate of change of flux remains same। पहले तुमने कॉपर लूप ले लिया सपोज, फिर आइडेंटिकल सिल्वर लूप ले लिया, है ना, ये कॉपर है ये सिल्वर है, तो इंड्यूस EMF पे क्या इफेक्ट होगा बोलो? इंड्यूस EMF, विल इट गो अप और विल इट रिमेन सेम? Remain same. Sir, Sir, remain why- same. Why remaining same? Does not depend on the Does not depend on nature of material. Okay, it should be conductor only, है ना, ठीक है। What about this induced current? Induced current is depending, है ना, रेजिस्टेंस कम, सिल्वर का कम होता है कि मोर होता है, लेस और मोर? less. Some more. फर्स्ट पार्ट का सेम है ना, सेम का आई मीन सेम। सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में रेजिस्टेंस विल डिसाइड फैक्टर, है ना, रेजिस्टेंस विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर E/R। ओके, एक्सप्लेनेशन बाद में लिखते, पहले आंसर, ठीक है। तो मोर करंट, है ना, मोर करंट इन सिल्वर, मोर करंट इन सिल्वर लूप, है ना, इन
Why? Since resistance is less. ये आपकी थोड़ा आइडिया होना चाहिए. You may ask सर ये इतने सारे कहाँ से याद करेंगे? तो you see the silver was at the top of the list. जब current electricity पढ़ा था, I told you silver is the very good conductor, then copper, then aluminum, है ना? तो ये तीनों तो पता होने चाहिए. बाकी का you cannot say कि हम कहाँ कितने याद करें. First one is silver. Silver का symbol AU होता है केवल. Copper and aluminum, ठीक है? सर ये first AG one. होता है. AG, sorry, है ना? AG है. Correct. गोल्ड का क्या है सिंबल? AU. गोल्ड का एयू है. ओके, तो एजी है ना, ठीक है. तो सिल्वर इज वेरी गुड कंडक्टर. इनफैक्ट उसकी कंडक्टिविटी कुछ दी भी थी, समथिंग 400 वाट या समथिंग इनटू 10 टू द पावर माइनस है. ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल सॉल्विंग में इट विल बी गिवन, बट कंक्लूजन ड्राइंग में वी डोंट नीड द एग्जैक्ट वैल्यू, बट वी नीड द सीक्वेंस व्हिच इज एट द टॉप, दैट्स ऑल. तो रेजिस्टेंस इज लेस एंड यू नो ओम्स लॉ I इज इक्वल टू E by R, है ना. जिसका रेजिस्टेंस कम होगा तो इंड्यूस ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट. यू टेक एनी कंडक्टर, है ना. उसमें किस पे डिपेंड कर रहा है? आई मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर, है ना. रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया भी रेट ऑफ फ्लक्स में क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, दैट रिमेनिंग सेम, आइडेंटिकल लूप, ठीक है. तो डजंट मैटर. सिमिलर टू द उसमें कैपेसिटर में भी तो यही था. बोथ प्लेट्स शुड बी कंडक्टिंग मटेरियल. इट इज इमटेरियल whether you take the gold plates or you take the copper plate, you take the aluminum plates or iron plates, capacitance is going to be same. क्या था कैपेसिटेंस का फार्मूला? C is equal to epsilon naught A by D. बीच में जो मीडियम है उस पर डिपेंड कर रहा है एरिया ऑफ द प्लेट्स पर और व्हाट इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स पर. So here also you take any conductor, doesn't make any difference. ठीक है. Moving further. यहाँ तक ओके है? Yes sir. What about this question? This question is for your practice. Can you see? तो इसको just note down and solve and send. Solve and send. Do you note it? Yes sir. Okay. These all examples you can do your own. एक्सरसाइज क्या लेते हैं, ये क्वेश्चन लेते हैं. देखो तो देखो इसको जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन. व्हाट इज दिस? लेट्स सी. लॉन्ग सोलेनॉइड है with 15, ये n दिया हुआ है, number of turns per unit length. Small n is given. Area now has the small loop of area 2 centimeter square placed inside the solenoid normal to its axis. ऐसे कोई solenoid, ऐसे एक एरिया है, छोटा सा एरिया solenoid के अंदर है ना, ठीक है. If current carried by the solenoid changes from 2 to 4 ampere in 0.1 second, what is the induced average होना चाहिए. The NCERT book में they have just missed this point. It is always average when time interval is countable. Something time interval है, ये एक point of time नहीं है. It should be average
but no problem. You should know this difference, that's all. So average induced EMF in the loop while current is changing. तो average induced EMF है ना, तो डेल्टा phi है ना, E average will be डेल्टा phi by डेल्टा t, माइनस भी रहेगा. phi कितना लिखेंगे? phi is equal to BA. उसके अंदर यूनिफॉर्म रहता है, सोलिनॉइड के अंदर फील्ड इज यूनिफॉर्म, एरिया इज गिवन. फील्ड कितनी होगी सोलिनॉइड के अंदर? फील्ड इज इनडायरेक्टली गिवन, फील्ड तुम्हें निकालनी पड़ेगी. कितनी होती सोलिनॉइड के अंदर? mu बी naught इनसाइड NI. द सोलिनॉइड इज म्यू नॉट एन है. एन दिया है, दिया टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है और अच्छा डेल्टा होगा है ना. एक आपकी I1 हो जाएगी डेल्टा में, एक B2, एक 1 विल बी phi 2, अदर विल बी phi 1. तो phi 2 विल बी, उसमें I2 आ जाएगा 4. चेंज लिखना है ना, चेंज लिखना है डेल्टा. तो नाउ यू कैन डू इट इजीली. लेट मी सी डिड आई डू इट. सॉल्व कर लेना इसको, जस्ट मैंने डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दूंगा. सी तो वैसा सिचुएशन है, एन इज गिवन, इसको ऐसा यूनिट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, पर सेंटीमीटर है ना. 10⁻⁻² हो जाएगा इधर, तो ये ऊपर आ जाएगा 1500 हो जाएगा ऐसा यूनिट में, पर मीटर हो जाएगा ना. दिस विल बी पर मीटर. एरिया इज गिवन, उसको भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो, 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करके. टी इज गिवन, डेल्टा टी या टी, ये डेल्टा टी कर लो यहाँ पे ना. ठीक है, तो B1 निकाल लो, B2, B1 में I1 आएगा, B2 में I2 आएगा. तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, phi 2 माइनस phi 1 कॉमन लेके सॉल्व कर लेना. क्लियर? इसका Yes, एरिया sir. वेक्टर भी दे रहेगा, फील्ड भी दे रहेगी, एरिया वेक्टर भी दे रहेगा. इसलिए यहाँ पे हमने कॉस वाला टर्म नहीं आएगा, एंगल है ना, एंगल विल बी cos 0 विल बी 1. ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज, कैन बी डन without any much problem. It is important question है ना, ये situation समझना, then you have to apply properly in the formula. Now जो माइनस साइन था उसका एक्सप्लेनेशन इधर है. दिस वन, नेक्स्ट वन इज द लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. देखो, तो माइनस का भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आएगा आपका. सी सपोज इफ वी टेक द लूप, ये हमने एक लूप लिया, एक कंडक्टिंग लूप लिया, और ये नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू दिस. तो इसमें नॉर्थ पोल लाएंगे तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. करंट एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी होगा. कौन सा होता है इसमें? जब नॉर्थ पोल लाया जाता है तो करंट इज इन सच ए वे दैट इट शुड अपोज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूसेस इट. करंट क्या है? जो इंड्यूस करंट है ना, अभी हमने पढ़ा, change of flux will produce the induced EMF that will produce the induced current. तो डायरेक्शन ऐसी होगी which will change, which will oppose करेगा changing flux को, which produces it. तो changing flux, अभी करंट ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी. एंटी क्लॉकवाइज होने से क्या होता है? नॉर्थ पोल आता है, नॉर्थ पोल बनता है. ऑलरेडी हमने सीखा है मैग्नेटिक डायपोल, करंट कैरिंग लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल. तो एंटी में नॉर्थ पोल बनता है ना. तो करंट ऐसे बना लो, करंट की डायरेक्शन ये है, तो नॉर्थ में एरो ऐसे आ रहा है. दिस विल बी नॉर्थ पोल. इफ यू ब्रिंग द नॉर्थ पोल क्लोजर टू द लूप, करंट विल बी फॉर्म्ड एंटी क्लॉकवाइज such that it should oppose the magnet coming closer to it, which is producing the magnetic field, which is producing a change of flux. ठीक है, तो नॉर्थ पोल जब लाते हैं पास में तो नॉर्थ पोल बन जाता है इसमें. ठीक है, अपोज कर रहा है.
उसको पास आने में अपोज करेगा। जब सेम नॉर्थ पोल, अगर आप अभी मैग्नेट को दूर ले जाओ, डायरेक्शन ऑफ करंट इज इमीडिएटली रिवर्सिंग, मेकिंग द साउथ पोल। क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू साउथ पोल। तो साउथ पोल होने से क्या होगा, इस नॉर्थ पोल को दूर जाने से भी रोकेगा। नाउ इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग। इनिशियली इट वाज अपोजिंग the approach of what is called magnet, and if you move backward it will approach the receding of the magnet. उसको दूर जाने से भी रोक रहा है, पास आने से भी रोक रहा है। In both way it is opposing. So that's what is noticed, that was noticed by scientist called Lenz. उसने फिर लॉ दिया इसका, तो है ना, तो polarity of induced current is such that it tends to produce the current which opposes the change in the magnetic flux that produces it. तो change मतलब जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसको ही अपोज कर रहा है ना। That's what is the Lenz law. That's what is the Lenz law. Clear? So how it is according to the conservation of energy? तो conservation of energy से related है, कैसे? Let's see. अगर देखो, अगर इसमें इमेजिन करते हैं इसमें साउथ पोल बन गया थोड़ी देर के लिए, आदित्य, तो साउथ पोल बन गया, तो क्या होगा कि अगर ये साउथ पोल बन जाता है, फिर यू डोंट हैव टू डू एनी वर्क, इसको जस्ट पुश करके छोड़ दो, हैंग कर दो मैग्नेट को, थोड़ा सा पुश कर दो तो अपने आप ही अट्रैक्ट कर लेगा ये। देयर विल बी द एनर्जी, देयर विल बी इंड्यूस ईएमएफ विदाउट एनी वर्क डन फर्दर। इनिशियली थोड़ा सा पुश कर दो, if opposite polarity is generated in case of magnet approaching towards it, so you don't have to do work. It will be against the law of conservation of energy. Energy को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट ही कर सकते हैं, बट वी कैनॉट इनहेंस इट। एनर्जी कैनॉट बी इनहेंस, बढ़ा नहीं सकते। वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, या फिर हम प्रेशर बढ़ा सकते हैं, बट एनर्जी को नहीं बढ़ा सकते। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ाते हैं बट एनर्जी नहीं बढ़ती उसमें। पास्कल लॉ में प्रेशर को बढ़ा लेते हैं, है ना, नहीं फोर्स को बढ़ा लेते हैं बट एनर्जी नहीं बढ़ती वहां भी। ठीक है, तो एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलने वाली, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली डू द वर्क, है ना। जितना वर्क करेंगे उतनी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में मिलेगी, है ना। तो इट इज पोलैरिटी, यहाँ पे लिखो, पोलैरिटी is according to law of conservation of energy। ठीक है, इसमें ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। if in first case if we consider south pole is developing, then which will attract the magnet and energy will be produced without any further work done। तो ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर बोला जाए prove that it is according to law of conservation of energy, you have to prove। ओके, यहाँ पे लिख लेना, फॉर एग्जाम्पल if south pole develops in first case, electrical energy will be obtained without any further work done, without any further work done, since it will attract the magnet, since loop will automatically attract the magnet। without any further work done। So therefore
it will be always opposing, है ना? क्लियर? इसमें भी अपोज कर रहा है, देखो साउथ पोल बन गया अभी। अगर ये नॉर्थ पोल ही रहता तो ऑटोमेटिकली ये रिपेल हो जाता एंड यू डोंट हैव टू डू एनी फर्दर वर्क, you will get the energy, electrical energy. So it is according to the law of conservation of energy. Could you understand this point? You got to explain in your own words. The polarity will be always opposing the change of flux which produces it. तो minus sign का मतलब वही है उधर. You can now write there minus sign means induced EMF, I mean current will be opposing the cause of its own production, that is change of flux. Are you there? Yes, sir. ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये शॉर्ट नोट 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें लेंज लॉ का। तो यू हैव टू राइट द प्रॉपर डायग्राम एंड एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। पहले स्टेटमेंट लिख दो और डायग्राम बना दो एंड देन यू कैन एक्सप्लेन these पॉइंट्स। ठीक है, show you, I will show you the YouTube that experiment, YouTube का वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा tomorrow, not today। ठीक है, किस तरह से अपोज करेंगे, वेरी सिग्निफिकेंट अपोजिशन इज देयर, यू नो। उस पे क्वेश्चन भी है, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन टुमारो, आई विल शो यू द इट्स डेमोन्स्ट्रेशन। देखो क्वेश्चन मेरा ये है कि सपोज ये एक कॉपर ट्यूब है, उसमें तुमने मैग्नेट ड्रॉप किया ना, ड्रॉप द मैग्नेट, इसका एक्सेलरेशन विल बी ग्रेटर देन जी और लेस देन जी। जो मैग्नेट है इट विल फॉल और इक्वल टू जी। Will it fall with more acceleration or less acceleration, or this is copper tube, this is magnet, this is copper tube, hollow tube है, इसके अंदर ड्रॉप कर दो। ठीक है, तो will it fall with the more acceleration, less acceleration or equal to g? फ्री फॉल है तो वो फ्री फॉल, बट इन दिस केस फ्री फॉल इज विद द ग्रेटर, फ्री फॉल नहीं बोल सकते इसमें, लेंज लॉ से अपोजिट फोर्स भी लग रहा है। फ्री फॉल में केवल ग्रेविटी का फोर्स। ऐसे क्वेश्चन भी बना सकते हैं, somebody may ask you can you take it as a free fall, तो आंसर will be no। फ्री फॉल में only one force, acceleration due to gravity, बट यहाँ पर लेंज लॉ से अपोजिट फोर्स लगेगा। यहाँ पे सपोज ये नॉर्थ पोल है, डू यू नो, कैन यू सी, ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ भी नॉर्थ पोल बन जाएगा। करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगा तो वो अपोज करेगा इसके ऊपर, तो एक्सेलरेशन विल बी लेस देन जी। 9.8 से कम से वो धीरे धीरे नीचे आएगा। इट विल बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, यू सी इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। कल अगर मैं तुम्हें डेमो दिखाऊंगा इसका, बहुत टाइम लेता है यहाँ तक आने में। इट इज ड्रास्टिकली डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अपोजिट फोर्स, लेंजर्स लॉ से। ठीक है, तो लेस देन जी, 9.8 से कम से गिरेगा, बिकॉज देयर विल बी कंसिस्टेंटली अपवर्ड अपोजिट। इसमें इंड्यूस करंट ऐसे एंटी क्लॉक ऐसे करंट इंड्यूस हो जाएंगे, सर्कुलर करंट ऐसे। ठीक है, एज लॉन्ग एज इट इज हियर इट इज ड्रास्टिकली डिक्रीजिंग। यहाँ भी कम है, इवन इफ इट इज अप्रोचिंग देन आल्सो लेस। अंदर तो और ज्यादा कम हो जाता है और बाहर निकलता तभी भी इतना, तभी भी कम रहेगा। इन ऑल द 3 केसेस, वेदर इट इज अबव द कॉपर ट्यूब और इनसाइड और आउटसाइड आल्सो, देयर इज लेंजर्स लॉ इज इन एक्शन, अपोज करेगा उसको, है ना। जब वो बाहर निकल जाएगा तो ये, जब ओके जस्ट मिनट, जब वो अप्रोच कर रहा है तो ये सिचुएशन है, और अंदर भी कंटिन्यूअस करंट लूप जनरेट हो जाते हैं तभी भी सेम, और जब वो बाहर निकलेगा तब ये सिचुएशन हो जाएगी। दूर जाने से भी रोकेगा उसको, पास में आने से भी रोकेगा। और इनसाइड आल्सो इट विल बी, इनसाइड आल्सो इट विल बी अपोजिंग, क्योंकि करंट्स अपोजिट ऐसे डेवलप होते जाएंगे इसमें। ठीक है, गॉट इट? दिस क्वेश्चन
and Lenz law. Both are clear? Yes, sir. बोलिए। तो एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, इसको लेंज लॉ से सॉल्व करके बताइए। ठीक है, टुमारो विल सी फर्दर क्वेश्चंस ऑफ लेंज लॉ। क्वेश्चन ये देखो, ये आपका इनफाइनाइट वायर है, करंट कैरिंग आए, एक सर्कुलर लूप है, कंडक्टर है, ऑल आर कंडक्टर मैंने लिखा है इसमें। ठीक है, नीचे लिख लो, लूप इज कंडक्टिंग लूप, है ना। अच्छा, एक पॉइंट और मुझे क्लेरिफाई करना है अभी। पहले ये क्वेश्चन ले लो, रेफर डायग्राम इन विच लूप, कंडक्टिंग लूप, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, conducting loop and the wires are in same plane, find the direction of induced current in the loop if current I in the wire is increasing. ये increasing दिया हुआ है आपको, इसमें दो पॉसिबिलिटी है, either एंटी क्लॉकवाइज, either clockwise और एंटी क्लॉकवाइज, दो ही पॉसिबिलिटी होती है। तीसरी भी हो सकती है कि करंट इज जीरो, नो इंड्यूस्ड करंट, है ना, बट यहाँ पे इंक्रीजिंग है ना, तो दैट विल प्रोड्यूस द चेंजिंग फ्लक्स, चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, देयर आर चांसेस ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, है ना, इन द कंडक्टिंग लूप। ठीक है, तो इंक्रीजिंग के केस में, बाकी दोनों केस हम डिस्कस कर लेंगे कल, डिक्रीजिंग होगा तो उसका अपोजिट हो जाएगा, डोंट हैव टू, ओनली वन यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई। ऑलराइट, नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, नोट कर लिया ये, जस्ट फाइनली जस्ट वन मोर पॉइंट एंड देन we'll end up. You must be thinking, changing flux में ऐसा क्या होता है कि induced current होता है ना, why not only magnetic field is sufficient to produce? Changing flux से क्या होता है कि there is, because of this is somewhere related to, एक तो energy conservation मैंने बताया, और दूसरा somewhere related to the forces applied on the free electrons. कंडक्टर की बात करें ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे एक सर्टेन डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस होता है, एंड दे मूव इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड हेंस फॉर्म द करंट. So changing flux is somewhere related to the force on the free electrons and which is responsible for the current, induced EMF and current. तो changing flux से अगर हम आगे डीपली इसको चेक करेंगे तो this is certainly producing the force in one particular direction, changing flux. ठीक है, clear? Any difficulty, anything you want to clarify? कुछ मिस हो गया तो just step back, others can log out, जिनको डाउट नहीं है they can log out, and those who have the any difficulties or any doubt can remain there. Raise your hand, किसी को है डाउट रेज करो, I will wait for you, otherwise I will end. No